continuity along with the boundary condition on displacement vector as well as electric vector at the interface between the two boundaries. जैसे हम जानते हैं कि लाइट वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है. अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड द बेंडिंग ऑफ लाइट. उसी तरह अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है तो जहां पे साफ बाउंड्री है वहां पे हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें डिसकंटिन्यूटी होता है. ठीक है, तो कब इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस होता है और कब डिसकंटिन्यूअस होता है और उसका जो है रिफ्रैक्शन लॉ क्या है उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा कि स्क्रीन जो है आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. ओके, यस सर. गुड. दिख रहा है बेटा? स्क्रीन आ गया? यस सर. चैप्टर 5 दिख रहा है ना? यस सर. वेरी गुड. मूव कर रहा है ये? यस सर. Very good. So here actually that is the electric field inside the material. Okay, so we are you might have been familiar that what is the different type of currents in the presence of electric field. One current is called the convection current, another is called the conduction current. In convection current, it doesn't flow the Ohm's law because it doesn't need any medium for the flow of the charge. And the better example is the cathode ray. Is it clear? And here the current and conduction current, the current flows through the conductor. We know that the free electrons are available for conduction in the presence of electric field, and the velocity of the electron inside the conductor in the presence of electric field, it is called the drift current. And we know that the current density J is equal to limits delta S tend to 0, delta I upon delta S. अगर कन्वेक्शन करंट के बारे में, कंडक्शन करंट के बारे में हम लोग जब आते हैं, मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है और इसके बीच में करते हैं, हमारा जो है करंट पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी. देयरफॉर द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड द J dot ds. Is it clear? Yes, sir. So the conduction current requires a conductor. Yeah, बोलिए. दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Visible, sir. और ठीक है, एक कंडक्टर है जो large number of free electrons that provide conduction current due to impressed electric field. When electric field is applied, the force of an electron with charge, that is force experienced by the electron, is equal to minus E into capital E. In free space, the electron would accelerate. In material, the electron suffers continual collisions, and the electron will move with the different velocities between collisions. And we know that the average distance traveled by the electron in a two successive collision, it is called the mean free path. And the time taken to travel a mean free path is called the collision time. Is it clear? So the conduction current is equal to J into sigma E. And it is also called the NEV, where N is the number of electron per unit volume and E is the charge of the electron. Therefore, J is equal to NEV, or we can say the sigma E. Is it clear? We know that the if any conductor, it is subjected to the electrostatic field. Is it clear? For isolated conductor means when it is subjected to a static electric field, then there will be the redistribution of the charge until the internal field is equal to the external field. Henceforth, the net electric field inside the conductor is equal to 0. Is it clear? Because is it clear? Therefore, the net charge within the conductor is equal to 0. जैसे ही अगर कोई कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होगा, वो सरफेस पे आकर अपीयर हो जाता है और जितने टाइम में आता है उसको हम लोग ट्रांजिशन टाइप कहते हैं. इसलिए जो सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है, दैट इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस.
Inside an isolated perfect conductor, the E is 0, rho v is equal to 0, and VAB is equal to 0. But when electric field is applied across the end of the conductor, then the current flows because of the setup of the gradient of the potential that is responsible for the flow of the current. Is it clear? And this is equal to Ohm's law. Okay. अब ये तो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ हो गया, और उसके बाद जो है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू. So that is the now we are very much interested for the equation of continuity. अभी पढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद, फिर इसको डिस्कस करेंगे. We know that from the principle of charge conservation, मैंने कहा कि charge neither be created nor destroyed, है ना. So in order to fulfill the charge conservation, the rate or we can say the time rate of decrease of charge within a given volume must be equal to the net outward current flow throughout the surface of the volume. मान लीजिए कि कोई, we know that any arbitrary area is enclosing the volume V, और वॉल्यूम V के अंदर चार्ज डेंसिटी रो भी है. तो ऑब्वियस है कि अगर मान लीजिए कि अगर हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू द वॉल्यूम और ओवर द एरिया, तो जितना चार्ज पास कर रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू करंट, एंड करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज द करंट डेंसिटी. Therefore the flux of J through ds is equal to J dot ds. तो डेल्टा I जितना करंट निकलेगा उतना ही अंदर में क्या होगा, that will be the rate of decrease of charge within a given volume. So that is called the conservation of the charge. So we know that the current flowing outside the your surface is equal to the surface integral of the J taken over the area S enclosing the volume. Okay, and the whole volume is enclosing the charge. Therefore, I out is equal to J dot ds is equal to rate of decrease of charge within the volume, dq upon dt. Therefore, we know that the Q enclosed inside the volume is equal to rho v. What is the definition, and what is the definition of the charge density? The charge density is equal to limit delta V tend to 0, delta Q upon delta V. Is it clear? So we can write the dq is equal to rho v into dv. So now differentiate q with respect to time t, therefore d upon dt, rho v dv, and the volume is constant. The only variable is the density. Therefore we can write here delta rho v upon delta t into dv. Now here we will apply the divergence theorem. What is the divergence theorem? That is the volume integral of the divergence of the vector field taken over the volume is equal to the surface integral of the current density taken over the area S. Is it clear? Now equating these two equations, we get divergence of J is equal to minus delta rho v upon delta t. Is it clear? So now मैंने रिलैक्सेशन टाइम की बात किया था कि अगर कंडक्टर के अंदर कहीं कोई चार्ज को रख देंगे, या डाइलेक्ट्रिक के अंदर में किसी चार्ज को रखते हैं, तो कितने टाइम के बाद वो सरफेस पर आएगा. From Ohm's law it is clear, J is equal to sigma I. From Gauss's law, divergence of D is equal to rho v, and hence divergence of E is equal to rho v upon epsilon, because we know that. तो दिखाई पड़ रहा है ना, ये स्क्रीन आ रहा है ना? Yes sir. तो थोड़ा देखो आवाज आ रही है, अनम्यूट करोगे? Yes sir. From Ohm's law, J is equal to sigma I, है ना. आप थोड़ी देर के बाद अपने को अनम्यूट करोगे और सुनाई पड़ रहा है कि नहीं बताते जाओगे, थोड़ा देर के बाद, बाकी ऐसे म्यूट करके रखोगे. From Ohm's law, J is equal to sigma I. From Gauss's law, divergence of D is equal to rho v. And we know that what is the relation between D and E? D is equal to epsilon E. Therefore, E is equal to D is equal to epsilon E. So put the value of D here. Therefore, divergence of E is equal to rho v upon epsilon. And what is the equation of continuity? The equation of continuity is divergence of J is equal to minus delta rho v upon delta t. और J का वैल्यू क्या होता है? According to Ohm's law, sigma I. Therefore, divergence of sigma I is equal to minus delta rho v upon delta t. And according to Gauss differential law, divergence of E is equal to rho v upon epsilon. So put the value here, sigma rho v upon epsilon
इज इक्वल टू माइनस डेल्टा रो बी अपॉन डेल्टा टी। तो भैया तो अब इसको क्या करते, इक्वेशन निकल गया डेल्टा रो बी अपॉन डेल्टा टी प्लस सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन रो बी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डेल्टा रो बी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन टी। और इसको हम लोग क्या करते हैं, जब इंटीग्रेट करते हैं तो log रो भी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा टी अपॉन इप्सिलॉन प्लस log रो भी 0 एंड log रो भी 0 दैट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज डेंसिटी एट द टाइम t is equal to 0 within the dielectric or the conductor. That is called, or it is also called the constant of integration. So अगर हम इसको log को हटाएंगे तो रो भी इज इक्वल टू रो भी 0 e minus t upon tau t, where the tau t is the relaxation time. केस में सिग्मा लार्ज होता है, इप्सिलॉन लार्ज होता है, सिग्मा स्मॉल होता है, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो बहुत अधिक होता है। इसलिए जहां पे हम चार्ज को रख देंगे डाइलेक्ट्रिक में, वहां बहुत समय तक वहीं पर रहेगा। बाकी कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी बहुत लार्ज होता है, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम होता है, इसलिए चार्ज जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सरफेस पे चला जाता है। So that is called the relaxation time. Now we will apply the boundary condition. आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। Others, unmute yourself. अरे अनम्यूट करो ना, अनम्यूट करो। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल और नॉट? सुमित कुमार asked to unmute. यस सर। सुमित, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, आपका स्क्रीन दिख रहा है। और ये दिख रहा है ना, मूव कर रहा है ना? यस सर, यस सर, डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन शो कर रहा है सर। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो बीच बीच में जरा जवाब देते रहोगे कि हमको लगे कि सब दिख रहा है, ठीक है? ओके सर। So now that is the boundary condition. Okay. So when the field, when the field exists in a medium consists of two different media, the conditions the field must satisfy are all called the boundary condition. मान लो कि कोई अगर दो डाइलेक्ट्रिक है, उसमें दो डाइलेक्ट्रिक का एक बाउंड्री कॉमन हो सकता है, एक डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर का कॉमन बाउंड्री हो सकता है, कंडक्टर और कंडक्टर का कॉमन बाउंड्री हो सकता है। तो मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, इट सफर्स, इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी तभी होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करता है। और हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रूट अंडर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी।
तो ऑब्वियस है Yes, sir. कि अगर हमारा, तो उसी तरह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग होता है, ठीक है। तो अब हमको स्टडी करना है कि Yes. बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। इज इट क्लियर? सो हियर वी Yes, विल sir. अप्लाई the your Kirchhoff second law, that is the line integral of the electric field taken along a path enclosing that area is equal to 0. We know that the line integral of the conservative field or the electrostatic field along a closed path is always equal to 0. And Yes. as well as the surface integral of the d taken over the area S is always equal to the total Charge. charge enclosed within the volume. That is a Gauss's law. Is it clear? Yes, sir. So here we are going to apply the first your boundary condition. Let us consider we have the two dielectrics. One is characterized by a dielectric constant epsilon 1, and second one is called the epsilon 2. And epsilon 1 is equal to epsilon 0 and epsilon r1, and epsilon 2 is equal to epsilon 0 epsilon r2. Epsilon 0 is the absolute permittivity, the unit is farad per meter, and नोट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये? Yes, sir. अच्छा, कोई लड़का कह रहा है कि विजिबल नहीं है नोट, दिख रहा है ना तुम लोग को? Yes. ठीक है। तो नहीं, उधर से क्यों कह रहा है कि नोट विजिबल नहीं है? तो दिख तो रहा है, आपको दिख रहा है ना? Yes, sir. हमको दिख रहा है. हाँ, तो सबको दिखना चाहिए, तो सबको दिखना चाहिए ना, इट शुड बी विजिबल टू ईच एंड एवरीवन। Yes, sir. ओके, जरा पूछ लेते हैं, और किसी से पूछ लो, दोस्त लोग सब, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, नाउ इट इज विजिबल, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर एंड इप्सिलॉन r1 और इप्सिलॉन r2 का मैं बताया था कि इप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस काई इलेक्ट्रिक, एंड काई इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, or electrical susceptibility. It is the ratio of the P is equal to epsilon chi electric ही. Is it clear? और chi electric का जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसीलिए epsilon r is equal to 1 plus chi, और epsilon r का कोई यूनिट नहीं होता है, तो epsilon r is equal to relative permittivity. अब let us consider E1 is the electric field in the medium 1 and E2 is the electric field in the medium 2. Is it clear? Okay. Yes, sir. Now the electric field it has two components. So ये जो एक बीच में जो लाइन दिख रहा है, कर्व दिख रहा है रेड कलर का, it is the common boundary between the two surfaces. The two dielectrics are separated by a very sharp boundary that is shown in this picture, schematic diagram. Is it clear? Yes. So now the electric field in the medium 1, it may be resolved into two components. That is the tangential component along the boundary, and the your one component that is the normal to the boundary. So here the E1, it may be resolved into two components. Either E1 or E2 may be resolved into two components. One is along the boundary, another is normal to the boundary. So along the boundary, that is called the tangential component, and normal to the boundary, that is called the normal component. Is it clear? So here yes. E1 is equal to E1t plus E1n, and E2 is equal to E2t plus E2n. Now apply, let us consider a small rectangle. Here A, B, C, D, it is a small rectangle enclosing tracks that is epsilon 1 and epsilon 2. That is the half of the portion of this rectangle, it is lying in medium 1, and rest half portion, it is lying in the medium 2. Is it clear? So and yes. the width of this rectangle, that is the delta W, and the length is equal to delta H. Is it clear? So width is delta H and the length is delta W. Now apply the here apply the your Kirchhoff law. What is the Kirchhoff law? The algebraic sum of the
EMF along a closed path is always equal to 0. So here, and now let us apply the work done in bringing the unit is positive charge in a closed path, or the line integral of the E taken around a closed path is always equal to 0. Therefore, E dot dl in a closed path is equal to 0. Okay. So now the E dot dl का अब हम closed path पे ले रहे हैं from A to B, B to C और C to D. अब देखिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट है. तो चलिए अब टेंजेंशियल कंपोनेंट के चलते हैं और टू द पाथ ABCDA इन ए पिक्चर. इज इट क्लियर? तो अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो अब E1 डॉट AB और E1 डॉट AB जब लीजिएगा तो ये हो जाएगा दैट इज E1 T डॉट AB प्लस E2 E1 N डॉट AB. तो आप E1 T डॉट AB ये तो दोनों पैरेलल होगा, इसलिए वर्क डन होगा. बाकी E2N क्या है, AB पे नॉर्मल होगा, इसलिए दोनों होगा, इसलिए कोई वर्क डन नहीं होगा. इसलिए जब A से B पे जाते हैं तो हमारा केवल इफेक्टिव फील्ड जो होगा वो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर. समझ में आ रहा है ना? यस सर. हाँ, वेरी गुड. उसके बाद B से C की तरफ अब देखिए E1 T W माइनस E1 N डेल्टा H बाई 2. मतलब देखिए टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है इसका मैंने कहा कि आपको जब हम लेकर चले तो E1 TW और यहाँ देखिएगा E1 N, तो ये हमारा इफेक्टिव जो फील्ड हुआ नॉर्मल E1 T. अब आप आ जाइए B से C की तरफ. तो B से C की तरफ चलिएगा तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का जो है वो कंट्रीब्यूशन चला जाएगा. क्यों जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट का? कि जब हम B से C की तरफ आएंगे तो हमारा जो ये है मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो BC पर नॉर्मल होगा. तो BC पे नॉर्मल होगा तो cos 90 0. तो कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे इफेक्टिव होगा? दैट इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E1, क्योंकि BC दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस और E1 नॉर्मल E1 जो है दैट इज पैरेलल टू BC. जब B से C की तरफ आ रहे हैं तो E1 नॉर्मल BC के पैरेलल है और E1 टेंजेंशियल इस पे परपेंडिकुलर है. इसलिए इफेक्टिव फील्ड जो होगा नॉर्मल फील्ड होगा. फिर C से D की तरफ जब चलेंगे तो टेंजेंस अब C से D की तरफ चल रहे हैं तो अब हम आ जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E2 में. तो यहाँ पे E2 का जो कंपोनेंट होगा वो टेंजेंशियल कंपोनेंट इफेक्टिव होगा, नॉर्मल कंपोनेंट के चलते वर्क डन 0 होगा. फिर D से जब A की तरफ जाएंगे तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा 0 हो जाएगा और केवल नॉर्मल कंपोनेंट के चलते जो है वर्क डन होगा. तो अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि here we are going to examine the boundary condition at the interface between the two surface. तो AB और CD इसके बीच का जो डिस्टेंस है डेल्टा H है. इफ द लिमिट डेल्टा H टेंड टू 0 तो ये जो एरिया है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ए लाइन. अगर मान लीजिए कि ABCD को स्क्वीज्ड कर देंगे तो ये किसके पैरेलल आ जाएगा? ये दोनों लाइन ABCD जो है किसके ऊपर कोइंसाइड करेगा? सरफेस के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर. बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि बाउंड्री के पास. अब बाउंड्री कब आएगी? जब लिमिट डेल्टा एस टेंड टू 0 हो जाएगा. और जब डेल्टा एस टेंड टू 0 हो जाएगा तो किसी भी फील्ड के द्वारा वर्क डन आइदर अलोंग BC और DA नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो रहा है, बाकी पाथ ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो गया. तो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो गया तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो वर्क डन नहीं होगा. इसलिए BC और DA के अलोंग एट द बाउंड्री कोई वर्क डन नहीं होगा. तो हमारे पास अब केवल दो ही कंपोनेंट बच जाएगा, दैट इज E1 TW माइनस E2 TW इज इक्वल टू 0. डेल्टा W 0 नहीं हो सकता, इसलिए डिफरेंस 0 होगा. देयरफॉर E1 T इज इक्वल टू E2 T. देयरफॉर द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री. अब कहिएगा सर माइनस E2 T क्यों लिखे हैं? तो माइनस E2 T नहीं होगा. यहाँ पे E1 T जो है दैट इज पैरेलल टू AB. पाथ ऑफ इंटीग्रेशन हमारा ABCD है. तो यहाँ देखिए C से D की तरफ चल डिस्प्लेसमेंट CD है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है ऐसे है.
तो E2 क्या होगा? E2 टेंजेंशियल इज जस्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट CD, इसलिए वर्क डन यहाँ पे क्या हो गया? निगेटिव हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कि E1 टेंजेंशियल और डिस्प्लेसमेंट AB पैरेलल है। इज इट क्लियर? इसीलिए हमारा यहाँ पे जो है वर्क डन पॉजिटिव हुआ। बाकी जब हम C से D की तरफ चलते हैं, जब हम C से D की तरफ चलते हैं तो हमारा क्या होता है? C से D की तरफ जब चलते हैं तो E2 टेंजेंशियल जो है वो DC के डायरेक्शन पर है। इज इट क्लियर? और पाथ ऑफ इंटीग्रेशन CD है, डिस्प्लेसमेंट C से D की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए वर्क डन हमारा यहाँ पे क्या हो गया? निगेटिव हो गया। Therefore, E1T is equal to E2T. Therefore, tangential component of E is continuous across the boundary. ये पहला निकला। अब आइए कि अब tangential component of E is continuous across the boundary. And what is the relation between the displacement vector and the electric field? The displacement vector D is equal to epsilon E. Therefore, E1T is equal to D1T upon epsilon, or E2 is equal to D2T upon epsilon 2. Is it clear? So epsilon 2 D1T is equal to epsilon 1 D2T. It shows that the tangential component of the D is not continuous across the boundary. It is discontinuous across the boundary. Is it clear? Now Yes, we are going to examine the boundary condition on the normal component of the D. What is the D? D is called displacement vector. D is called the your electric flux density, and the unit is coulomb per meter square, and the displacement vector is always related with the free charge. Is it clear? And the electric field intensity is always related with the bound charge and the free charge. Is it clear? तो D जो है कहीं भी अगर फ्री चार्ज रखिएगा तो the any free charge is the source of flux, electric flux lines, streamline line of flow. Is it clear? So the electric flux originate, or electric flux line, or it originates from the positive charge and terminates at the negative charge. Is it clear? तो मान लीजिए कि अगर कोई फ्री चार्ज है तो उसके साथ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ही हो गया दैट इज नॉर्मल टू द एरिया, इसलिए यहाँ पे हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द डी लेते हैं। तो नाउ लेट अस कंसीडर, अभी यहाँ पे आप देख लो, there are the two dielectric medium, one having the epsilon 1 and the epsilon 2, both are separated by a very sharp boundary. Now let us consider a small disk. Let us consider a small disk or the pill box enclosing the dielectric constant epsilon 1 and the epsilon 2. यहाँ पे क्या जो दिख रहा है पिल बॉक्स जो है सेप्ट सरफेस वॉल्यूम जो है, या इसको हम लोग डिस्क भी कह सकते हैं, ए वेरी स्मॉल डिस्क whose thickness is negligible, delta is 10 to 0, or the pill box, ठीक है, having the surface area delta S as well as the height is equal to delta S, that is enclosing the some portion of medium 1 and the rest portion of medium 2. Now let us consider D1 is the displacement vector in the medium 1 and the D2 is the displacement vector in the medium 2. Is it clear? Then what should be the effect of the, what should be the change? What should be the change in the displacement vector when it passes through medium 1 to medium 2? Is it clear? So in order to study the change in the displacement vector, we will establish some relation known as the boundary condition. So now here, if it is a volume enclosed by the your area, is it clear? So now we will apply the Gauss's law. Is it clear? So what is the Gauss's law? The total electric flux is equal to the total charge enclosed within the volume. Okay, so now the displacement vector has, we may resolve the displacement vector into two components. One is tangential along the boundary, another is the normal component perpendicular to the boundary. Is it clear? So the D has the two components. D is equal to your D1T plus D1N, and D2 is equal to D2T plus D2N. Is it clear? So here
we are very much interested in the flux. Therefore, we will consider here only the normal component of the D. So then here at the boundary, here we are going to find out the boundary condition at the SAR boundary. We will get the SAR. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, अभी आ रहा है, उस समय नहीं आ रहा था। हाँ, उधर से कोई कॉल आ गया था, कॉल आने पर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है ना ट्रांसपोर्ट। सो मोबाइल में ही दिक्कत होती है। तो सो याद रखो मेरे बच्चे कि जब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तुम्हारा तो बाउंड्री कंडीशन, हमेशा बाउंड्री वही होगा जहां पे हमारा सरफेस जो है या लाइन पैरेलल टू बाउंड्री हो जाए। तो बाउंड्री के पास हमको डी एग्जामिन करना है। ये तभी होगा व्हेन द डेल्टा एच टेंड टू 0। जब डेल्टा एच टेंड टू 0 होगा तब हमारा जो है ये डिस्क का जो दोनों सरफेस जो डेल्टा एस दिख रहा है वो कहाँ पे आ जाएगा? पैरेलल टू बाउंड्री आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो द होल सरफेस व्हेन द होल वॉल्यूम इट इज स्क्वीज्ड or compressed, is it clear, such that the two end surfaces delta s will be parallel to the common boundary. अब आप देखिएगा कि जब डेल्टा एच को 0 करेंगे तो सिलेंडर का एक दो तरह का सरफेस है, एक गोला वाला कब्ड सरफेस है और दो फ्लैट सरफेस है। तो जब हम डेल्टा एच को 0 कर देंगे बउआ तो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया 0 हो जाएगा ना? यस सर, सिलेंडर तो ऐसा हुआ, सिलेंडर में हाँ एक कर्व्ड सरफेस होता है और दो फ्लैट सरफेस होता है नीचे और ऊपर। तो अगर सिलेंडर के हाइट को 0 हम कर देते हैं, डेल्टा एच टेंड टू 0, तो हमारा जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया 0 होगा कि नहीं 0 होगा? यस सर, 0 हो जाएगा। तो जब एरिया 0 होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स भी 0 है। वेरी गुड। तो जैसे ही कॉमन बाउंड्री पर आते हैं तो डी का चाहे नॉर्मल कंपोनेंट हो चाहे जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, दोनों के चलते फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब दो फ्लैट सरफेस है तो फ्लैट सरफेस पे डी का कंपोनेंट लेते हैं D1 का, तो एक टेंजेंशियल होगा एक नॉर्मल होगा। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या एरिया से गुजर रहा है क्या? पहले हमको बताओ तो, इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट पासिंग थ्रू द एरिया DS? टेंजेंशियल कंपोनेंट, here the tangential component that is parallel to the surface and that is parallel to the flat surface. यस, पास करेगा? नो सर, DS से नहीं पास करेगा ना, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो D डॉट DS DDS cos थीटा 90 डिग्री है। अब फ्लक्स तभी होता है जब फिजिकल एंटिटी जो है वो एरिया से मतलब गुजरती है, तभी ना फ्लक्स होता है। यस सर, फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर, यही होता है। इज इट क्लियर? डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ इफेक्टिव फील्ड कौन हो जाएगा? नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे बाउंड्री पे अब याद रखिएगा कि बाउंड्री डेल्टा एस जो है अपर फ्लैट सरफेस उसका एरिया आउटवर्ड नॉर्मल होगा, और इप्सिलॉन 2 में जब जाइएगा तो इप्सिलॉन 2 में जो फ्लैट सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो अपोजिट टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एस हो जाएगा। तो अब और हमारा जो वेक्टर जो है D2 और D1, D2n और D1n का डायरेक्शन क्या है? डेल्टा एस का डायरेक्शन है, अपवर्ड नॉर्मल। इज इट क्लियर? बाकी नीचे वाला जो फ्लैट सरफेस है दैट इज अपोजिट टू दी D2n। D2n ऊपर की तरफ है, तो जो हमारा पिल बॉक्स का जो नीचे वाला सरफेस है उसका जो हमारा एरिया वेक्टर है दैट इज पॉइंटेड योर इनवर्ड। Therefore, here D2n D1n delta S minus D2n delta S is equal to delta Q, and delta Q is equal to rho S ds, where rho S is the surface charge density. If the free charges are distributed over the surface boundary, then D1 then this is equal to rho S ds, assuming delta S tend to 0. Therefore, D1n minus D2n is equal to rho S. Therefore, D1n minus D2n is equal to rho S. If the free charge is distributed over the surface, in that condition,
the field in the medium 2, it is increased by a factor, that is rho s. Therefore, the d2n, therefore the d1n is equal to n plus rho s, or the d2n is equal to d1 minus rho s. Is it clear? तो d1 Yes, क्या हो sir. जाएगा? d1 is equal to d2 plus rho s. यही होगा. If the rho s is equal to 0, if the free charges are not available on the surface, then the d2n is equal to d1n, and we can say the normal component of the d is always continuous across the boundary. And we know that the relation between the d1 and the e1, that is epsilon 1 e1n, is equal to d2n, and that is equal to epsilon 2 e2n. Therefore, e1n upon e2n is equal to epsilon 2 upon epsilon 1. Henceforth, the normal component of the d is continuous across the boundary, and the tangential component of the e continuous across the boundary. The tangential component of the d is discontinuous across the boundary, and the normal component of e is discontinuous across the boundary. Is it clear? So there are 4 boundary conditions on either electric field E or the displacement vector D. Is it clear? So now we will Yes, study the refraction of the electric field, just like the Snell's law of refraction. Snell's law of refraction क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो दो क्या कहते हैं, दोनों का जो एंगल ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट के बराबर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसी को ना कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. yes, sir. तो यहाँ पे अब हम लोग जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन निकालेंगे. Is it clear? So now let us consider there are 2 mediums, epsilon 1 and the epsilon 2. Both are separated by a sharp boundary. Boundary दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Now we have the in medium 1 we have the d1 and the e1. याद रखिएगा, in a isotropic homogeneous medium there are the 2 types of dielectric. One is called the isotropic and second one is called the anisotropic. Isotropic का मतलब हुआ if the refractive index is constant through at each and every point, or we can say if the dielectric constant is the independent of the direction of the electric field, then the medium is said to be isotropic. But if the dielectric constant it depends upon the direction of the electric field, in that case the dielectric is said to be anisotropic. Is it clear? उसी तरह की आप जो पढ़े यंग मॉडुलस का फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए पढ़े हैं, लीनियर मीडियम के लिए जहां पे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. बाकी जहां पे जो है अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या यंग मॉडुलस जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द your direction of the stress, direction of the force. In that condition, the modulus of rigidity or the Young modulus, it can be represented in a tensor form. Is it clear? तो यहाँ पे जो हम आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, जहां पे हमारा एवरी पॉइंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, यूनिफॉर्म है और सेम है और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है. एंड इन आइसोट्रोपिक D is always parallel to E. In anisotropic medium, D is not parallel to E. And we know that what is the relation between D and the E? D is equal to epsilon naught E. हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. Sir, you are not audible. Sir. Hello. Yes, sir. Very good. तो अब देखिएगा कि E is the electric field inside the dielectric, and we know that inside the dielectric is smaller than the external electric field. Is it clear? Yes, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
सर ये वाला लाइन फिर So, से रिपीट करिए सर, and we बंद know कर रहा that था। D is कि inside the dielectric, the electric field is smaller than the polarizing electric field. मतलब कि the electric field inside the dielectric, that is called the effective electric field. It is the vector addition of the external electric field and the पोलराइजिंग internal field, and that is called the due to the induced charge. Due to induced charge. Therefore, Yes. the E is equal to minus E polarized or E induced. So, what is the relation between D and E? Displacement vector D is equal to epsilon naught E plus P. Is it clear? Yes. D is equal to epsilon naught E plus P. Yeah, D is equal to epsilon naught epsilon R E. Therefore, D is equal to epsilon E. Is it clear? So the displacement vector D is always larger than the electric field E. तो यहाँ देखिए वेक्टर में भी दिखाया गया है, E छोटा है, D बड़ा है. Is it clear? But D and E both are parallel. So in medium one, the D1 and the E1 both are parallel, and both are making angle theta 1 with this. Is it clear? Normal to the surface. And Yes, here, in the medium 2, the E2 is the electric field intensity and D2 is your displacement vector, and both are parallel as well as making an angle theta 2 with the normal. Is it clear? And Yes, sir. and in medium 1, the displacement vector D and the E, it may be resolved, the D either in medium 1 or medium 2, it may be resolved into two components. That is, one is along X direction and other is that is the Y direction. That is, one is along the boundary at tangent, another is normal to the your surface. Is it clear? It may be resolved into two component, tangential component and the normal component, either in medium 1 or in medium 2. Is it clear? So, Yes. And we know that the tangential component of E is continuous across the boundary. That is, E1t is equal to E2t. The normal component of D is also continuous the boundary. That is, a D1n is equal to D2n. Is it clear? Now, E1t is equal to E2t. E1. What is the tangential component of the E1? That is equal to E1 नॉर्मल में cos थीटा और पैरेलल में हो जाएगा x एक्सिस में क्या हो जाएगा sin थीटा. So we have the E1 sin theta 1 is equal to E2 sin theta 2. अब ये E2 इधर की तरफ है, तो E2 इधर की तरफ लीजिएगा, तो E2 cos theta 2 and the E2 sin theta 2 निकल गया. अब D पर आइए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D पे. We know that the normal component of the D is continuous across the boundary. तो D का जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा योर sin थीटा और नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा cos थीटा. Therefore, D1 cos theta 1 is equal to D2 cos theta 2. और D को E में कन्वर्ट कर लिए तो हमारा D1 is equal to epsilon 1 E1 and D2 is equal to epsilon 2 E2. ये आ गया. अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिए तो ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किए तो epsilon 2 tan theta 1 is equal to epsilon 1 tan theta 2. Therefore, tan theta 1 upon tan theta 2 is equal to epsilon R1 upon epsilon R2. This is called the law of refraction. It is called the law of refraction. इजी है ना, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब हमारा दूसरा है कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री. मतलब कि हमारा जो सेकंड मीडियम है कंडक्टर है, अब फर्स्ट मीडियम डाइलेक्ट्रिक है. So now apply the boundary condition. That is the E dot dl in a closed path is equal to 0. तो आप जानते हो कि हम लोग निकाले थे कि that is your E2 ET जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. और आप जानते हो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. कंडक्टर के अंदर जीरो होता है ना. Yes, sir. और हम लोग ये निकाले हैं कि द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री. द बाउंड्री पर E2t इज इक्वल टू E1t होता है. तो E2t अगर जीरो हो जाएगा तो E1t कितना हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा सर. जीरो हो जाएगा ना. वेरी गुड. Yes, sir. और हमारा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ dt है वो भी जीरो हो जाएगा. इज इट क्लियर?
अब आइए कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशंस, इज इट क्लियर? अब नॉर्मल कंपोनेंट के लिए आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमारा नीचे वाला कंडक्टर है, ऊपर में हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। तो आप जानते हो कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो कंडक्टिंग सरफेस है उसके ऊपर हमारा फ्री चार्ज है, दैट इज रो एस। तो इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो है E1 नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो केवल हमारा इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन केवल हमारा क्या बचेगा, D1 बचेगा। तो देयरफॉर Dn इज इक्वल टू रो एस निकल जाता है, दैट इज अ फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया। So no electric field exists inside a conductor. Since E is equal to minus gradient V, there is no potential difference between any 2 points in the conductor. The electric field must be external to the conductor and must be normal to its surface. Is it clear? फिर कंडक्टर फ्री स्पेस बाउंड्री है। कंडक्टर फ्री स्पेस बाउंड्री का मतलब इसके ऊपर की जो हमारे सरफेस है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एंड वी नो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ D is continuous across the boundary. इज इट क्लियर? तो ऑब्वियस है कि अगर इप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 हो गया, देयरफॉर Dn इज इक्वल टू रो एस, और एज इन द रियल केस dt इज इक्वल टू Et इज इक्वल टू 0, ये निकल गया। तो इस तरह करके आप जो है इस प्रॉब्लम को हम लोग डिफरेंट बाउंड्री के लिए इस इक्वेशंस को सॉल्व किए। अब हम जो है प्रवेश करेंगे दैट इज इन द मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो या तो नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है। इज इट क्लियर? तो जरा मैक्सवेल इक्वेशंस पे हम लोग जो है थोड़ा सा पहले हम ओपन कर देते हैं। क्या हो गया, सर्दी हो गया है? यस सर, थोड़ा सर्दी हो गया है। मौसम चेंज कर रहा है वो, बाहर निकलिए तो लगता है कितना कड़ी धूप है, नहीं? यस सर, और घर के अंदर में थोड़ा ठंड है। घर में आओ तो एकदम ठंडा है। तो की रकम काम चल रहे है तो काम तो चलेगा ही, जो भी रकम से काम चले। तो ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा तो ठीक है, यस हम नजर आ रहे हैं ना? यस सर, आप नजर आ रहे हैं। वेरी गुड। और अच्छा, और कोई हाथ उठाए वो जरा देख लेते हैं क्या। मनीषा कुमारी, हाँ मनीषा बोलो। हेलो हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए। हैव एनी प्रॉब्लम? यस सर। सर वो जो आप डायग्राम समझाया ना, टेंजेंशियल और नॉर्मल वाला, हाँ सर उसमें जो इफेक्टिव लेना था वो वाला एक बार बता दीजिए ना। हाँ बता देते हैं, आप सुनते रहो। हम अब तुम्हारा चेहरा, एक मिनट। चलिए मनीषा जी, आप जरा वीडियो आइए, सामने आइए, वीडियो करो, अनम्यूट करो। सर कैमरा खराब है। अच्छा कोई बात, आवाज आ रही है मेरी ना? अब yes, हेलो। या यस सर, अब तुम जो है जो पिक्चर हमारा था उसको तुम ये लियो कि नहीं? अब देखो, कल्पना करो कि कोई मान लो कि ये जो हमारा जो है दो केस लिए थे। एक ये मान लो कि ये स्मॉल रेक्टेंगल है, ठीक है? इसका आधा पोर्शन मीडियम 1 पर है, आधा पोर्शन मीडियम 2 पर है। ये बाउंड्री है। कल्पना कीजिए कि दो डाइलेक्ट्रिक है, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इप्सिलॉन 1 है और एक इप्सिलॉन 2 है। अब कल्पना कीजिए कि दो ईंट है, दो ब्रिक्स है। तो दो ब्रिक्स का जो कॉमन सरफेस है, ज्वाइनिंग सरफेस है, दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री। इज इट क्लियर? बाउंड्री जो है, उस बाउंड्री क्या होता है? शार्प सरफेस होता है, और किसी भी जो चेंजेस होता है वो बाउंड्री पर ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर मीडियम लेते हैं तो थ्रू आउट द मीडियम
हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सेम होता है। जैसे ही मीडियम चेंज होता है, कहाँ मीडियम चेंज होता है, जैसे ही वो हम सरफेस से सरफेस टू एयर पर आते हैं या सरफेस टू दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो जैसे ही वो आते हैं एब्रप्ट चेंज होता है इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वहीं पर हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है बेंड करता है। वहां पे एक देखिए, आपके इसके केस में, लाइट के केस में जो है क्या होता है, लाइट बेंड करता है और इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या होता है, बेंड कर जाता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब बेंड करता है तो ऑब्वियसली कि जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारा फ्लक्स लाइन अगर का बेंडिंग होता है, इसका मतलब है कि जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट भी पहले वाले की अपेक्षा बेंड कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेंडिंग हो रहा है। और लाइट के केस में क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से वेलोसिटी चेंज करता है और उसके बाद क्या होता है कि लाइट का जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन का, वो बेंड कर जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। तो प्रश्न उठता है कि अब बाउंड्री पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव होगा। तो बाउंड्री का मतलब, अगर वहां पे बाउंड्री पर अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हमको एरिया चाहिए। तो कोई भी ऐसा कोई एक मान लीजिए कि एक स्मॉल डिस्क है, तो डिस्क का कुछ पोर्शन मीडियम 1 में है, कुछ मीडियम 2 पे है, ठीक है। अब डिस्क अब मान लीजिए कि डिस्क का 2 फ्लैट सरफेस है, उसको पिल बॉक्स भी कहते हैं। तो ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस, ये दोनों बाउंड्री पर तभी मिलेगा जब हाइट ऑफ बॉक्स या हाइट ऑफ आपका डिस्क 0 हो जाएगा। जब डिस्क का हाइट को 0 कीजिए तभी ना उसका दोनों सरफेस पैरेलल हो जाएगा एक दूसरे का, बाउंड्री पे कोइंसाइड करेगा। यस सर। हाँ, अब एक चीज बताइए कि अगर उस सरफेस के पैरेलल कोई फील्ड हो, जिसको हम लोग टेंजेंशियल फील्ड कहते हैं, उसका फ्लक्स होगा कि जो हमारा फील्ड जो है सरफेस के एरिया से गुजर रहा है, पास कर रहा है, उसको अक्रॉस द एरिया है, उससे होगा। बताइए जरा सर। अक्रॉस द एरिया उससे? हाँ, क्योंकि फ्लक्स मतलब होता है वेक्टर डॉट डीएस, वीडीएस कॉस थीटा। तो कॉस 90 0 हो गया टेंजेंशियल के लिए, तो कोई फ्लक्स की परिकल्पना नहीं है। इसीलिए हम लोग इफेक्टिव फील्ड क्या होता है, नॉर्मल लेते हैं फ्लक्स कैलकुलेट करते समय। क्लियर हो गया बाबू? यस सर। और सर एक कल आप एक लिखाए थे सर, S2 और S1 के लिए जो हम लोग H.dl निकाल रहे थे, तो सर S2 जो था उसमें तो मतलब बस ID इफेक्टिव होगा ना? किसमें बाबू? सर ये पिछले वाले क्लास का क्वेश्चन था, डिस्प्लेसमेंट वाला। हाँ यस सर। हम आपको बताएंगे, अभी थोड़ी देर के बाद फिर से डिस्कस करेंगे उसको टॉपिक, ठीक है। yes. तो अच्छा, और टेंजेंसी और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जब स्मॉल रेक्टेंगल लिए हैं, तो अच्छा बताइए, वर्क डन है, E.dl का मतलब क्या, वर्क डन होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो E का 2 कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, एक नॉर्मल कंपोनेंट है। तो आप हमको चीज बताइए कि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट पर परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन होता है? नहीं सर। तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए वर्क डन नहीं ना होगा, तो इफेक्टिव फील्ड क्या होगा, टेंजेंशियल हो गया। टेंजेंशियल, हाँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए पहले। यस सर। ठीक है। ओके, तो और 4 विद्यार्थी, खाली 4 हाथ उठाए हुए हैं, सबका हाथ गिर गया नीचे। सोचा कि सर पूछेंगे, हैं? तो डर के हमारे हाथ पीछे कर लिए। कहाँ चला गया? एक मिनट। ऊपर से लगा। या हेलो, तो यस सर। प्रीति, एक मिनट। हाँ, प्रीति चौधरी, हैव यू एनी क्वेश्चन? यस सर। सर कल आप बता रहे थे ना कि मैक्सवेल जो एम्पियर्स लॉ में
ये किए थे कि मतलब उसको हम्म। और मॉडिफाई किए थे, तो हाँ। उसका इफेक्ट जो क्या था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, वहां पे जब आप इक्वेशंस लिख रहे थे तो डी इंट्रोड्यूस किए थे, डी ग्रेडियंट ऑफ डी वेक्टर फॉर्म में, ग्रेडियंट ऑफ या वो डी क्या था वो नहीं समझ में आया। डाइवर्जेंस ऑफ डी था, ये डाइवर्जेंस ऑफ डी था उसको। हाँ डाइवर्जेंस ऑफ डी। हाँ, द डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो होता है ना। तुम गॉसेस लॉ, हम लोग जो है गॉसेस लॉ, तुमको फिर से इसको लोग डिस्कस करेंगे कि गॉसेस लॉ जो होता है सरफेस इंटीग्रल का, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज, और क्यू इज इक्वल टू होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो भी डीवी। चार्ज डेंसिटी रो भी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा भी टेंड टू 0 dq अपॉन dv. Therefore, qv is equal to rho v into dv. Therefore, the d dot ds is equal to volume integral rho v into dv. And according to Gauss divergence theorem, your divergence of d dv is equal to surface integral d dot ds. तो d dot ds is equal to rho v dv. d dot ds को हम लोग गॉस डाइवर्जेंस से उसको डाइवर्जेंस में कन्वर्ट कर लिए वॉल्यूम इंटीग्रल में. Therefore, the volume integral of the divergence of the vector field d taken over the volume v, that is the volume integral divergence of d into dv is equal to volume integral rho v into dv. Therefore, divergence of d is equal to rho v. That is called the point differential form of the Gauss's law. ठीक है. और सर फिर आप डी को डिफाइन किए थे ई नॉट इनटू वेक्टर फील्ड ई प्लस पोलराइजेशन से. हाँ, इस रूम में आपको डिराइव किया था ना कि d is equal to epsilon naught, that is the absolute permittivity electric field E and plus P, and P is equal to epsilon naught chi electric E. Therefore, epsilon naught electric field is equal to 1 plus chi electric, and 1 plus chi electric, it is called the your relative permittivity epsilon r. Therefore, d is equal to epsilon naught epsilon r E is equal to epsilon E, where epsilon is equal to epsilon naught epsilon r. Is it clear? और सर आप जब लिखते हैं ना बोर्ड में तो थोड़ा सा साइड दे के थोड़ा पॉज लीजिएगा क्योंकि लिख नहीं पाते हैं, आप जल्दी से स्लाइड कर देते हैं. अच्छा, ठीक ठीक. ओके सर, थैंक यू सर. गुड गुड गुड, वेरी गुड, थैंक्स फॉर योर सजेशन. ठीक है अच्छा बेटा. सर, कंडक्टर जो है उसमें तो बस कंडक्शन करंट होगा ना, आईडी तो हाँ. 0 होगा. नहीं, कंडक्टर देखो, कोई भी परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता है बेटा, कोई भी परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता है, उसमें इम्प्यूरिटीज होती है. इज इट क्लियर? तो Yes. दो ही तरह, आइडियल केस में जाके कंडक्टर परफेक्ट होगा तो सुपर कंडक्टर कहते हैं. हाँ. इसलिए जब हम उसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाते हैं तो उसका कैपेसिटेंस भी डेवलप करता है. तो सो एनी कंडक्टर, जब आप इलेक्ट्रिकल के अगर स्टूडेंट हैं और आपको हम देखिए ट्रांसमिशन लाइन, जब आप बिजली का तार से लाइन गुजरता है, करंट फ्लो करता है, तो ड्यू टू द फाइनाइट डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर having its resistance as well as inductance, and two wires are separated by some distance, so having the conductance, transconductance, and the your capacitance. तो इस तरह हमारा जो है कोई भी जो वायर है, कोई भी जो कंडक्टर है, उसका दोनों कांस्टेंट होता है, उसका वो प्योर नहीं है, इसलिए उसका जो है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन भी होगा और सिग्मा भी होगा, परंतु सिग्मा लार्ज होता है, इसलिए कंडक्शन करंट जो है लार्ज होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट जो है नेग्लिजिबल होता है, बाकी फ्लो करता है. और सर डाइलेक्ट्रिक में बिल्कुल भी कंडक्शन करंट नहीं होगा. नहीं, अगर लॉसी डाइलेक्ट्रिक है तो लॉसी डाइलेक्ट्रिक में कंडक्शन करंट भी होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, बाकी वो वहां पे तुम्हारा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन सिग्मा, तो उस कंडीशन पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है इट डोमिनेट्स ओवर द कंडक्शन करंट, इसलिए वहां पे लगभग डिस्प्लेसमेंट करंट डोमिनेट करता है और कंडक्शन करंट नेग्लिजिबल होता है. तो मतलब सर दोनों केस में दोनों करंट होता है ना. हाँ, अगर आइडियल नहीं है तो याद रखिए. बाकी इन जनरल हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक में डिस्प्लेसमेंट करंट है और कंडक्टर में जो है कंडक्शन करंट. ठीक. यस सर, थैंक यू. क्योंकि आप जो माइक्रो, हाँ बोलिए सर, किस केस में कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है?
किसमें? सर इसमें होता कंडक्शन है करंट और डिस्प्लेसमेंट को- करंट कभी सेम या हो सकता है? क्वाजाई कंडक्टर में होता है। अगर मान लीजिए कि जहाँ पे वो आधा कंडक्टर की तरह बिहेव करे, आधा डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करे, तो उस केस में होगा। उस तरह का मटेरियल पढ़ लीजिएगा। ओके जहाँ पे देखो 3 तरह का मटेरियल तो हम लोग जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जानते हैं, सेमीकंडक्टर जानते हैं, और उसके बाद हम लोग कंडक्टर जानते हैं। तो क्वाजाई कंडक्टर दैट इज कॉल्ड द सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो दोनों के बीच में। इज इट Yes. क्लियर? तो Yes. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल लें। या तो हम नेक्स्ट शेयर करें बाबू स्लाइड को। यस सर। यस सर। तो उसके पहले थोड़ा सा कथा कहानी कह लेते हैं कि अब देखो मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द मैक्सवेल इक्वेशंस? इज इट क्लियर? तो मैक्सवेल क्या कहता बाबू? मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड the laws of electrostat and the magnetostat in the form of 4 equations. Is it clear? Maxwell क्या Yes, कहा sir. था? He formulated the laws of electrostat and the magnetostat in the form of 4 equations. Is it clear? The first one is called the Gauss's law of electrostat. The second one is called the Gauss's law of magnetostat, and third one is called the Faraday's law of electromagnetic induction, and the fourth one is called the Ampere's law. So he formulated the laws of electrostat and the magnetostat in the form of 4 equation. तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होगा? Gauss's law of electrostat, that is D dot ds is equal to rho v dv. D dot ds is equal to the total enclosed charge. And Gauss's law of magnetostat, that is the surface integral of the V taken over the area S, that is a magnetic flux over a closed surface is always equal to 0. Okay, magnetic lines of flux होता है, it forms a closed path. Is it clear? Continuous होता है, henceforth किसी particular point पर जितना magnetic flux आ रहा है उतना magnetic flux जाता है, इसलिए net magnetic flux क्या होता है? 0 हो जाता है. Is it clear? Yes. तो B dot ds 0 हो जाता है. Third one आता है, that is called the Kirchhoff first law. Kirchhoff first law, that is the we know that the J dot ds according to J, the surface integral of the J taken over the area S is always equal to 0. That is a surface integral of the J taken over the area J dot ds, J in a closed path, the J dot ds is always equal to 0. The divergence of J is always equal to 0. Is it clear? So that is called the Kirchhoff third law, and the fourth one is called the Kirchhoff second law. Sorry, that is algebraic sum of the EMF in a closed path is always equal to 0. We know that the line integral of the electrostatic field about the closed path is equal to 0. That is the E dot dl is equal to 0. So he formulated the laws of electrostat and the magnetostat in the form of 4 equations. Is it clear? तो आपको हम दो स्लाइड में इसको समझाएंगे। पहला हम ओपन करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सवेल से पहले चारों लॉ था, एंड ही ओनली फॉर्मुलेटेड द लॉज। एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सवेल इन मैक्सवेल इक्वेशन? that he added, that is the contribution of the Maxwell equation in the Maxwellian equation, that he introduced a new type of current in order to satisfy the equation of continuity, and that is known as the displacement current. So that is only one contribution of Maxwell in the Maxwellian equations. So I am going to share the screen. Is it clear? जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत हमसे पूछिएगा, हम तुरंत जवाब देंगे, है ना। हमको स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली पूछ दीजिएगा। खाली आपको समझने के लिए हम स्लाइड का हेल्प ले रहे हैं। खुल गया? सिम खुल गया कि नहीं? दिख रहा है? यस सर। यस सर, खुल गया। खुल जा सिम। अरे हम भी तो तुम ही लोग तरह सीखते हैं सब। जिंदगी में देखिए कुछ सिखाने के लिए थोड़ा ही जो आता है। तो दुनिया में कहा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ या फॉर फिटेस्ट कहते हैं कि जब आपको जंगल में भेज दिया जाए, जैसे मान लीजिए हवाई जहाज में आप हैं और हवाई जहाज पे पूरा आपके 740 विद्यार्थी को हम बैठा कर लेके चल रहे हैं, ठीक है, और अचानक जो है अभी तक एक आप ग्रुप किसमें थे? ग्रुप के रूप में थे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी मिलके ग्रुप में था कि सर कहेंगे चलो तुम लोग क्लास लेंगे जो है मॉरिशस में। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मॉरिशस के अभी पहुंचा ही नहीं था
तब तक से जंगल के ऊपर क्या होता है कि हवाई जहाज में खराबी आने लगती है। तो सर क्या करते हैं, बोलते हैं चलो सबको कूदा देते हैं नीचे जंगल में। तो सब जंगल में कूद जाता है। अब जैसे ही जंगल में कूद रहेगा जो फिट होगा, तो सब अपने अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ने लगता है। तो वहां एक टीम का रूप ले लेता है। टीम मतलब समझते हो ना, ग्रुप से टीम बन गया। अब वहां पे टीम के रूप में काम कर रहा है। और उसी में से वो लड़का था, स्नेहा जो थी, वो पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ पर चढ़ गई। चढ़ने के बाद बोली, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन। अरे सामने चलो, समुद्र है, वहां चलते हैं और वहां पे आग जलाएंगे तो कोई नाव आएगी और लेकर चलेगी। अच्छा अच्छा। तो स्नेहा थोड़ा सोचने का ढंग औरों से अलग था, वो पेड़ पर चढ़ गई। तो इसी को कहते हैं लीडर, ग्रुप लीडर, टीम लीडर। ग्रुप का लीडर नहीं हो सकता है, टीम का लीडर। जो व्यक्ति औरों से अलग होकर सोचता है, कुछ हटकर सोचता है, वही लीडर कहलाता है। दैट इज अ बेटर एग्जांपल ऑफ द लीडर। और वही कहता है कि चलो रास्ता सामने है। इज इट क्लियर? तो चीज दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो उसका एक विजन था, और साथ में विजन को फुलफिल करने के लिए उसने एक स्ट्रेटजी अपनाया। वो पेड़ पर चढ़ गया। अब पेड़ पर देखने के बाद बोला कि दैट इज माई ऑब्जेक्टिव, दैट इज माई गोल। इज इट क्लियर? सो इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, देन नाउ ट्राई टू सेट अप योर गोल। एंड व्हाट शुड बी द गोल? दैट विल गिव happy and prosperous life. Is it clear? And what is the meaning of the happiness? That is the synchronization between the physical health, mental peace, and above all the relationship. ये माँ खाना खाइए कि नहीं खाइए, कितना मेरे लिए मेहनत करती है। बाबूजी को भी खाना खिला के भेजती है, हम लोग भाई बहन को भी खिलाती है। अब पापा ऑफिस से जाते हैं तो झाड़ा लगाते हैं, है नमक बेसी हो गया, हो गया। खाना वाना तो बनाना है नहीं, खाली नौकरी करके आना है बस उसी के लिए। अब माँ यहाँ तो सबको पालती है। अगर माँ नौकरी भी करती है तो पिता के बराबर पैसा भी कमाती है, घर को भी चलाती है, बच्चों को भी खिलाती है। तो ऑलवेज द आवर रिस्पेक्टेबल वुमेन, ladies and the girls are always superior to the male. समझ में आया? यस सर। यस सर। माँ बाबूजी से बड़ी है कि नहीं बड़ी है? बड़ी है ना? तुमको भी ध्यान देती है, पापा का भी ध्यान देती है, भाई सबको ख्याल रखती है, खाली अपना ख्याल नहीं रखती है। सो मदर इज ऑलवेज ग्रेटर देन फादर। मातृशक्ति हमेशा पितृशक्ति से बड़ी होती है। जिंदगी में याद रखिएगा, माँ का त्याग, माँ की तपस्या। अभी भी माँ कहीं पीछे खड़ी होगी, बउआ पढ़ रही है, इसको चाय नाश्ता दे दे समय पे। चाहे पढ़ी लिखी माँ हो और चाहे जो है अनपढ़ माँ हो, माँ माँ होती है। माँ का जो विजडम होता है ना, पढ़ाई लिखाई से नहीं आता है। सो हम लोग की माँ का जो ज्ञान है वो एक IIM के ग्रेजुएट से फार फार बेटर देन एनी ग्रेजुएट फ्रॉम IIM। और मदर, हम लोग की माँ जो होती है ग्रेट होती है। ओके, तो नाउ मैंने कहा कि टाइम वैरिंग फील्ड, मैक्सवेल्स इक्वेशंस एंड द बाउंड्री। फिर से देखिए, टाइम वैरिंग फील्ड, we are not interested in the steady state field or the stationary field. We are very much interested in the time varying field. के लिए अच्छा हमको जरा बता दो भैया, तुम घर में कहाँ स्टैटिक फील्ड देखते हो? तुमको जो घर में बिजली आ रही है वहां पे वोल्टेज और करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना। तुम जो टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम देख रहे हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिनोसाइडल इन द नेचर होता है, मतलब टाइम के अनुसार वैरी करता है। देन we are very much interested in the time varying field. Any isolated charge radiates energy. कभी सुने हैं कि कोई भी अगर स्टेडी स्टेट किसी भी करंट से, किसी भी वायर से अगर डीसी करंट फ्लो कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा, हमको मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाएगा, बाकी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अनुसार ट्रेवल नहीं करेगा। बाकी आप देखिएगा घर में जैसे ही रात को स्विच को ऑफ कीजिएगा, पंखा चल रहा है तो देखिएगा स्विच के क्रॉस जो है वो आपको स्पार्क दिखाई पड़ेगा। कहां से आता है? तो क्या होता है कि जैसे ही लाइट को ऑफ करते हो वैसे ही पंखा में कॉइल है, इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है। दैट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंस लॉ।
वैसे ही वहां पे हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और दैट इज द बैक ईएमएफ। और बैक ईएमएफ के चलते क्या होता है कि जो हमारा स्विच है उसके दोनों एंड पे आके क्या होता है कि चार्ज एक्युमुलेट करता है। और जब चार्ज एक्युमुलेट करता है तो उसके बीच का स्पेस बहुत कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि मीडियम ब्रेक करता है और डिस्चार्ज ऑफ चार्ज होता है। और ये जो चार्ज जब डिस्चार्ज करता है तो वी नो दैट एनी आइसोलेटेड चार्ज रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इज इट क्लियर? तो जब हमारा चार्ज डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है कि वहां पे जो एयर है वो सडनली एक्सपैंड करता है, तो क्या होता है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट कॉजेज द साउंड। और साथ ही साथ हमारा जो आइसोलेटेड चार्ज जो है इट रेडिएट्स एनर्जी। रेडिएट्स मतलब क्या हो गया कि दैट इज द प्रोपगेशन ऑफ द एनर्जी विथ सर्टेन वेलोसिटी एंड दैट इज द लाइट। So we have the sound and the light both. That is a better example of the lightning. So अब we are always interested in the time varying field. We do not want to discuss about the stationary field. Is it clear? So time varying field, Maxwell's equation and the boundary condition. Now I've already told that the Maxwell, he formulated the laws of electrostat and the magnetostat in the form of 4 equations. क्या क्या था भैया तुम्हारा? What is the Gauss's law? That is the surface integral of the D taken over the area S. D dot ds is equal to Q is equal to rho v dv, where rho v is the volume charge density. Is it clear? What is the Ampere's law? That is the line integral of the S taken along a boundary that is enclosing the current. Is it clear? What is the Ampere law? That is the MMF, that is the magnetomotive force. MMF, that is called the MMF. E dot dl is called the EMF. That is the amount of energy converted from non-electric form to electric form by passing the delta Q charge from the lower potential to the higher potential. That is the definition of the EMF. Just like EMF, we have the magnetomotive force. That is the line integral of the S taken along a closed path is equal to the current flowing through, passing through this closed path. Is it clear? Here the your current, here the source of the current, here the filamentary conductor that is carrying current I. Is it clear? Okay, तो जो हमारा path of integration है, that is enclosing the current. Is it clear? तो हमारा जो here we are taking the line integral of the S about the wire. Is it clear? About the axis of the wire. Is it clear? About the source. So here we have the H dot dl is equal to the current enclosed. D dot ds is equal to the charge enclosed, and the H dot dl is the current enclosed, and this is equal to current is equal to J dot ds, and that is Ampere's circuital law. And the surface integral of the B taken over the area S, that is called the net magnetic flux, is always equal to 0. The net magnetic flux is equal to 0. These are the integral form. अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा? E dot dl. How can we convert the line integral into the surface integral? How can you convert the line integral into the surface integral? With the help of the Stokes law. That is the surface integral of the vector field taken over the area S is equal to the line integral of the vector field taken along a path enclosing that area. Therefore, curl of E dot ds is equal to your curl of E dot ds is equal to E dot dl is equal to 0. So curl of E dot ds surface integral is equal to E dot dl. तो E dot dl 0 है तो curl of E 0 हो जाएगा क्योंकि ds 0 नहीं हो जाएगा. Now D dot ds is equal to rho v dv. तो इसको ये total electric flux is equal to rho v dv. How can you convert the surface area into the volume integral? That is the volume integral of the divergence of the vector field taken over the volume is equal to the surface integral of the vector field taken over the area S enclosing that volume. So divergence of d dv is equal to d ds. d ds 0 हो गया. Therefore divergence of d dv is equal to 0, and henceforth
dv can't be 0, therefore divergence of d is equal to rho. है ना, इक्वेट कर देते हैं. Now the curl of h is equal to j. We know that h dot dl is equal to I is equal to j dot ds, and now we will convert it into the surface integral with the help of the Stokes theorem. The Stokes theorem states that the surface integral of the curl of the vector field taken over the area S is equal to the line integral of the vector field taken along a path enclosing that area. Therefore, the surface integral of curl of h dot ds is equal to j dot ds. Therefore, curl of h is equal to j. And here, again, with the help of the Gauss divergence theorem, the surface integral, the volume integral divergence of b dv is equal to b ds, and b ds is equal to 0. Therefore, volume integral divergence of b dv is equal to 0. dv 0 नहीं हो सकता है, इसलिए divergence of b जो है 0 हो जाएगा. Is it clear? Now, taking the curl of h is equal to j, now taking the divergence of the left hand side and the right hand side, divergence of curl of any vector field is equal to 0, therefore divergence of j is equal to 0. This is the equation of continuity for the steady state, and this equation is derived from the point differential form of the Ampere's law. Henceforth, the Ampere's law is as such only valid for the steady current, not for the time varying current. So this is the equation of continuity for the steady current. So the divergence of j is equal to 0, and divergence of j is equal to divergence of j is equal to 0 is equal to a surface integral j dot ds is equal to 0, and j dot ds is equal to 0. That is a Kirchhoff first law. So the divergence of j at is equal to 0. It is called the Kirchhoff law. That is algebraic sum of the current meeting at a point is equal to 0. जितना current आ रहा है उतना current निकल जा रहा है. So J is solenoidal in the, याद रखिएगा कि neither source nor sink, जितना आ रहा है उतना निकल जा रहा है. So it is Kirchhoff first law. Now, what is the Faraday's law of electromagnetic induction? We know that the rate of change of magnetic flux through a closed surface is equal to the EMF induced in the path. अगर ओपन स्पेस में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कीजिएगा तो करंट कहीं फ्लो नहीं करेगा. बाकी जैसे ही जो है आपका पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, आप जो है आप क्या कीजिए कि एक कंडक्टिंग रिंग को उस स्पेस में डाल दीजिएगा, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर समाहित करके रखता है, तो आप देखिएगा कि उस रिंग में करंट फ्लो करने लगता है. वो तब तक से फ्लो करता है जब तक से उस रिंग के अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के अनुसार चेंज कर रहा है. सो द EMF produced, the rate of change of magnetic flux, it induces the EMF along a closed path. Is it clear? So EMF along a closed path is equal to the rate of change of magnetic flux through the area enclosed by the boundary. Is it clear? So E dot dl, it is called the EMF induced in the path of integration or in a closed path. And d phi upon dt, it is the rate of change of magnetic flux through the area enclosed by, bounded by the your contour boundary. And here the phi is the magnetic flux, that is equal to b dot ds. Now here there are two types, there are two variables, that is the b, and b आपको बीमल जी पढ़ाए होंगे कि b is called the magnetic induction field, b is called the magnetic flux density, and here its unit is equal to Weber per meter square or the Tesla. आप जहां पे फोर्स के टर्म में रिप्रेजेंट कीजिएगा F इजिकल टू I dl क्रॉस B, तो B को फोर्स पर यूनिट करंट एलिमेंट डिफाइन कीजिएगा, देन द यूनिट विल बी टेस्ला. ताकि जब B को डिफाइन कीजिएगा लिमिट डेल्टा S टेंड टू 0 d phi v upon ds, that is called the flux density, and this one is called the magnetic induction field. Is it clear? और the phi, और याद रखिएगा टू, मैंने कहा कि there are two variables b और ds. Keeping the ds constant, in the case of the transformer area constant रहता है,
कॉइल का, और केवल जो वेरिएबल रहता है करंट थ्रू द कॉइल, एंड वी नो दैट H is proportional to I, B is proportional to I। तो जब कॉइल से करंट को चेंज करते हैं तो करंट क्या इंड्यूस करता है, करंट से हमको B पैदा होता है, that is called the induction phenomena and that is called the B। Henceforth B is called the induction field। क्यों नाम लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर से ही रिलेटेड है, and here the EMF generated is called the transformer EMF। अब कीपिंग द B इज इक्वल टू कांस्टेंट और एरिया को चेंज कराते हैं, उसका बेटर एग्जांपल है कि रेल पे दो पटरी के पर जब एक दो रेलगाड़ी का पहिया घूमता है तो वहां पे क्या होता है कि अर्थ का फील्ड कांस्टेंट होता है परंतु एरिया चेंज करता है, एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ along the length of the axle is equal to E is equal to V cross B dot dl। Is it clear? And that EMF is called the transformer EMF। So there are two types of motional EMF। Therefore there are two types of EMF। One is called the transformer EMF where the area is constant, only variable is B, and the second one is called the motional EMF where the B is constant but the area is changing with the time, therefore E is equal to V ELV, that is a V cross B dot dl, that is the EMF। Is it clear? Now E dot dl, और how can E dot dl है मेरे बच्चा, E dot dl जहां लाइन इंटीग्रल है उसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दो, दिस इज नथिंग बट कर्ल ऑफ E dot ds अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, एंड कर्ल ऑफ E dot ds मैंने कहा था कि एरिया कांस्टेंट है, वेरिएबल b है, देयरफॉर इट मे बी रिटन एज माइनस सरफेस इंटीग्रल डेल्टा b अपॉन डेल्टा t डॉट ds। बच्चा दोनों को इक्वेट कर दो तो कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा b अपॉन डेल्टा t आ जाता है। कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस delta B upon delta T, that is called the point differential form of the Faraday's law। Point differential form of the what? Faraday's law, है ना। अच्छा एक चीज बताओ बउआ, अगर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, अगर हमारा पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है जहां फ्लक्स चेंज कर रहा है उसे बाहर लोगे तो क्या होगा? यस सर, क्या बोले? पाथ ऑफ इंटीग्रेशन हमारा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम फ्लक्स से बाहर चले जाएं तो क्या हो जाएगा? ईएमएफ वहीं प्रोड्यूस होगा ना जहां पे पाथ ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर फ्लक्स चेंज कर रहा है। फ्लक्स, यस सर। अगर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो ई डॉट प्रोड्यूस होगा। हाँ, वेरी गुड। तो अच्छा, अब बचिया पूछी थी, फिर से हम आपको बता दे रहे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, ठीक है। अब देखिए कैपेसिटर एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। ये देखिएगा, ये कैपेसिटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इप्सिलॉन है, डी इसका बीच का डिस्टेंस है, आईसी एसी सोर्स सप्लाई किए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इसे करंट आईसी फ्लो कर रहा है। आईसी क्या है? कंडक्शन करंट है। क्यों? क्योंकि वायर से जो करंट होगा दैट इज द कंडक्शन करंट। तो जैसे ही हमारा यह टाइम वेरिंग फील्ड है, टाइम वेरिंग करंट है, तो जो हमारा जो कैपेसिटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इप्सिलॉन है, तो भौआ डाइलेक्ट्रिक के अंदर में तो कोई कंडक्शन करंट फ्लो नहीं करेगा। बाकी देखते हम लोग कि थ्रू आउट द सर्किट जो है वो करंट क्या होता है, वो फ्लो कर रहा है। करंट को तो फ्लो नहीं करना चाहिए था, उसको तो रुक जाना चाहिए था। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ये जो कैपेसिटर के अंदर में जो करंट है, जो डिसकंटिन्यूटी है, उसको हम लोग कैसे जो है पूरा करते हैं। तो जैसे ही हम ऑन करते हैं, हमारा जो कैपेसिटर का प्लेट है उसके सरफेस के ऊपर चार्ज क्या होगा? With time t, the charge starts to spread over the surface of the plate, मतलब कंडक्टर। अब उसके ऊपर चार्ज जीरो से, मैं एसी की तरह ना, एसी सोर्स है तो जीरो से मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। तो ये हमारा प्लेट के ऊपर चार्ज खुद नाच करने लगा, डांस करेगा, है ना, गाना गाएगा, चल अकेला चल अकेला। तो चल अकेला करते करते वो करंट कॉन्स्टिट्यूट्स कर देगा, ठीक है। तो अगर प्लेट को टच कीजिएगा कैपेसिटर को, तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? पहले बताइए, मारेगा? मारेगा, यस सर। हाँ, बाकी जब उसके बीच में हाथ घुसा दीजिएगा तो नहीं मारेगा। मारेगा? नहीं सर। हाँ, क्योंकि वहां पे कंडक्शन करंट नहीं है। तो उंगली से करंट घुसेगा तभी ना मारेगा। बाकी वहां पे अगर तुम कोई गॉस मीटर रखोगे तो देखोगे गॉस मीटर में डिफ्लेक्शन हो गया,
मतलब मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। इज इट क्लियर? तो वहां से करंट अपना एग्जिस्टेंस जो है खोकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट कंस्टिट्यूट्स द डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कंडक्शन करंट हो गया dq अपॉन dt इज इक्वल टू c dv अपॉन dt। अब देखिए कि I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, c dv अपॉन dt, c इज इक्वल टू इप्सिलॉन a अपॉन डे, और यहाँ पे I इज इक्वल टू इप्सिलॉन a dv अपॉन dt, सब वैल्यू को डाल दिए, देयरफॉर IC इज इक्वल टू इप्सिलॉन a d अपॉन dt, और IC अपॉन a इज इक्वल टू d इप्सिलॉन e अपॉन dt, और d e इप्सिलॉन इज इक्वल टू d, therefore IC upon a is equal to dd upon dt, where dd upon dt, this is called the displacement current density, because IC upon a, that is the current flowing through the capacitor. Is it clear? And this is called the displacement current. So here, as such, the current is not flowing through the dielectric, but there is a displacement of the charge from one plate to other plate, from one electrode to the other electrode. Is it clear? So any dielectric, any material, it is characterized by its electrical properties as well as the dielectric property. Is it clear? And what is the conduction current? Sigma E. Is it clear? So we have the total current is equal to conduction current and plus the that is IC is the current through the capacitor. This is called the displacement current, and here IR is the current through the conductor. Is it clear? So we have the displacement current and the conduction current, total current. Is it clear? और यहाँ थोड़ा सा आप हम उलट देंगे, आपका तो नहीं उल्टे, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। हाँ, ठीक हो गया? उल्टा हो गया सर। अभी आपको सीधा दिखाई पड़ रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है। हाँ, उल्टा है तो इसको सीधा तो नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, वो इसको जब हम ये किए तो उसी समय उल्टा हो गया था। तो आप सुनते रहिए ना, समझ जाइएगा आप। तो the Ampere circuital law as it apply, मैंने कहा था कि Ampere circuital law कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J। अब सुनते जाइएगा, ऑलरेडी हम बोर्ड पर डिराइव किए हुए थे। कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J, लेफ्ट और राइट में डाइवर्जेंस ले लीजिए, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो डाइवर्जेंस ऑफ J इज इक्वल टू 0, बट इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो डिराइव किए हैं आज। डाइवर्जेंस ऑफ J इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, डाइवर्जेंस ऑफ J इज इक्वल टू माइनस डेल्टा रो V अपॉन डेल्टा T 0 होता है। एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर तभी 0 होगा जब डेल्टा रो V अपॉन डेल्टा T 0 होगा। इज इट क्लियर? ओके, तो जो मैक्सवेल था उसने क्या कहा कि इन ऑर्डर टू मतलब सेटिस्फाई और इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ दैट प्रॉब्लम, in order to maintain the equation of continuity, that is the charge neither be created nor destroyed, he added a term in that equation, curl of H is equal to J plus G. He added a term G. Is it clear? Now take the divergence of latent side. Divergence of curl of H is equal to divergence of J plus divergence of G. Therefore, divergence of G is equal to minus divergence of J, and this is equal to divergence of G is equal to delta rho V upon delta T. क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर से करंट नहीं फ्लो करता है तो डाइलेक्ट्रिक के तो कैपेसिटर के दूसरे प्लेट के बाद करंट क्यों आ जाता है। तो कहा कि इसमें जो डिसकंटिन्यूटी है, जो हमको एक्चुअल करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो हम वहां पे क्या किया, बोला कि उसके बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ करंट है, फिक्सियस करंट है, और उस करंट को जब वहां पे वो लिख दिया तो कहा कि टोटल करंट अगर कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट है तो प्लेट के बियॉन्ड या अवे, प्लेट के अवे, फर्स्ट प्लेट के अवे और सेकंड प्लेट के बियॉन्ड कंडक्शन करंट होगा और बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, तो टोटल करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डाइवर्जेंस ऑफ G इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ माइनस डाइवर्जेंस ऑफ J, मतलब कि
इन ऑर्डर की किरचॉफ लॉ का मतलब क्या है कि जितना करंट आए उतना करंट निकले, तो करंट Yes. तो घुस रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ जे, बाकी वहां से उतना ही करंट निकलना चाहिए, तभी हमारा चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी Will be सेटिस्फाई destroyed. होगा। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए वहां पे डाइवर्जेंस ऑफ जे मतलब उतने के बराबर एक क्वांटिटी को ऐड कर दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. इज इट क्लियर? और डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू, बउआ पूछी थी क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ, यहाँ पे लिख दिए, डाइवर्जेंस ऑफ जी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डी, देयरफॉर कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस जे डी। निकल गया? ये रो भी क्या होता है? व्हाट इज द रो भी? So volume. डाइवर्जेंस ऑफ डी, हाँ. रो भी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डी। यहाँ पे Yes, sir. डाइवर्जेंस ऑफ जी इज इक्वल टू डेल्टा रो भी अपॉन डेल्टा टी है ना बउआ, और डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू क्या होता है? रो भी, पॉइंट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ Rho v. गॉस लॉ। तो Yes, sir. ये डेल जो है ये स्पेशल कोऑर्डिनेट है, तो वेरिएबल टाइम वाला क्या, टाइम वेरिएंट क्या हो गया? डी है, देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ जी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, देयरफॉर जी इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, अब सीधा हो गया। Yes, sir. अब सीधा हो गया. तो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू क्या हो गया? जे प्लस जे डी, वेयर जे इज कॉल्ड द कंडक्शन करंट एंड डी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, therefore the display density, therefore id is equal to jd dot ds and jd is equal to delta t upon delta d upon delta t dot ds there, and for a non-conducting medium inside a dielectric, the j is equal to 0, henceforth curl of h is equal to delta d upon delta t. Is it clear? Yes, sir. मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि आप जब देख रहे हैं, मान लीजिए कि हम सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोबाइल मेरे पास है, मोबाइल क्या करता है कि हमारा जो एनालॉग सिग्नल है, बोलते हैं हेलो, ये क्या हो गया? ऑडियो हो गया, ये एनालॉग फॉर्म में है, ठीक है, साउंड है, ये बहुत दूर इंग्लैंड अमेरिका आपके पास नहीं जा सकता है। जा सकता है क्या? No, sir. नहीं जाएगा। तो क्या होता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं? मॉड्यूलेट D. कराते हैं। आप अब हम कहेंगे बउआ तुमको जाना है धनबाद, तो पैदल चलो, तो बीच में छितरा जाइएगा, तब तक से वो ट्रेन मिल गया, ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन आपको पहुंचा दी नहीं, और वहां से फिर आपको कोई उतार दिया। तो वही चीज होता है कि हमको एक सिग्नल है जो यहां से चिल्लाएंगे तो वो 10 आधा किलोमीटर तक भी नहीं जा सकता है, डिफ्रैक्ट कर जाता है ना? Yes. तो क्या होता है, उसको हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ मॉड्यूलेट कराते हैं। इज इट क्लियर? तो हम Yes, sir. क्या होता है कि जब मोबाइल में बोलते हैं हेलो, तो ये ऑडियो सिग्नल को क्या होता है, फिर हम इसको कैरियर वेव के साथ, माइक्रोवेव के साथ 10⁹ हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज के साथ इसको हम मॉड्यूलेट कराते हैं। अब मॉड्यूलेट कराने के बाद फिर क्या होता है, एंटेना से इसको प्रोपगेट कर दिए, ठीक है। अब एंटेना से बाहर निकल गया, तो बाहर में तो डाइलेक्ट्रिक है, एयर है, Yes, sir. Air एयर dial. है कि नहीं है? Yes. साउंड तो मीडियम चाहिए, वो तो मतलब हम कहते हैं कि वो तो वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप ये बताइए कि जहां पे हम बोले वहां पे तो हमारा जो हम बोलते हैं उसको इससे डायफ्राम से वोल्टेज और करंट में कन्वर्ट कर दिया, और हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और हाई फ्रीक्वेंसी करंट को हाई फ्रीक्वेंसी एच फील्ड में कन्वर्ट कर दिया। सो द वोल्टेज एंड द करंट कन्वर्टेड इनटू द हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक एंड द एच फील्ड। अब ई और एच फ्री स्पेस में जाएगा कैसे, ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि करंट है, करंट के लिए मीडियम चाहिए। तो कहता है कि फ्री स्पेस में एक करंट हो सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्स्टिट्यूट्स द डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड एरिया से क्रॉस करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स induces electric field, and the rate of change of electric flux induces that. तो इस तरह E फील्ड H को इंड्यूस करता है और H को इंड्यूस करता है, और E और H कंबाइंड बोथ वो चल देता है अपनी यात्रा। इसलिए जो है डिस्प्ले, जहां पे कंडक्शन नहीं है वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। Therefore, and Maxwell equation from Faraday, curl of E is equal to minus delta V upon delta T, and curl of H
dot ds is equal to j dot ds plus delta d upon delta d. Therefore, h dot d is equal to ic plus id, and this is called the modified Ampere's law. This one is called the modified Ampere's law. Am I correct? लो समझ में आया बुआ? तो मैक्सवेल Yes, sir. इक्वेशन क्या हो गया? मैक्सवेल formulated the laws of electrostat and the magnetostat in the form of 4 equation. Divergence of D is equal to rho V, divergence of B is equal to 0, curl of E is equal to 0 and curl of H is equal to 0. So इसका जब मैक्सवेल इक्वेशन का फिजिकल आएगा, he formulated the laws of electrostat, Gauss's law. The total electric flux is equal through a closed surface is equal to the net charge within the volume. Is it clear? Yeah, the flux of electric intensity through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught, the net charge present inside the surface. What is the Gauss's law of magnetostat? The total magnetic flux is always equal to 0. And what is the third law? That is the line integral of the electric field taken along a closed path is equal to 0. That is curl of E is equal to 0. This one is called the Kirchhoff's second law. And what is the fourth law? That is Ampere's law. Curl of H is equal to J, and divergence of curl of any vector is equal to 0. Divergence of J is equal to 0. Therefore, the J dot ds is equal to 0. That is called the Kirchhoff's first law. Algebraic sum of the current meeting at a point is equal to 0. Is it clear? So curl of H dot dl is equal to I. Therefore, curl of H is equal to J. E dot dl in a closed path is equal to 0. Therefore, curl of E is equal to 0. So he formulated the laws of electrostat and the magnetostat in the form of the 4 equation. But Ampere's law is as such only valid for the steady current. Is it clear? And it doesn't satisfy, or it doesn't hold good for the your time varying field. Is it clear? And we know that in order to get rid of that problem, or in order to overcome this your defect, is it clear? Yes. Maxwell modified the Ampere's law. He introduced a special type of current that is known as the displacement current. Is it clear? So जैसे ही displacement current को add कर दिया, तो हमारा that one is known as the modified Ampere's law. Is it clear? So the Ampere's law, it must be consistent with the equation of continuity. So is it clear? So in order to make the current continuous, he added for a time varying field, he added a displacement current density or displacement current along with the conduction current. Is it clear? And henceforth, the line integral of the A is taken along a closed path is equal to the conduction current and plus the displacement current. Is it clear? Yes, Any sir. problem? So there are only 2 Maxwell. याद रखिएगा कि मैक्सवेल का पहला 2 इक्वेशन है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू रो वी है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0. ये इलेक्ट्रोस्टैट का इक्वेशन है. इज इट क्लियर? बट देयर आर ओनली 2 इक्वेशंस फॉर द टाइम वैरिंग फील्ड. कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा 2 एंड कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस जे डी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी. तो आपसे पूछा जाता है कि मैक्सवेल का टाइम वैरिंग इक्वेशन क्या है, तो there is only one Maxwell equation for the time varying field. That is the modified Ampere's law. That is the 4th. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. मैक्सवेल का एक ही कंट्रीब्यूशन था कि उसने जो है एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाइड कर दिया, और वही जो है पूरे प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है फाउंडेशन स्टोन बना. समझ में आ रहा है बुआ? Yes, sir. तो मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग पढ़ लिए डिफरेंशियल फॉर्म में, मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग पढ़ लिए इंटीग्रल फॉर्म में. ये नटसेल में दिया हुआ है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन एंड सिग्निफिकेंस और नेम ऑफ द लॉ, दैट इज द गॉसेस लॉ. उसके बाद गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैट एंड द एम्पियर्स लॉ एंड द फैराडेज लॉ. समझ में आ गया? Yes, sir. सर बोलिए. सर एक जगह पे आप जहाँ बोले थे ना आइसोट्रोपिक मीडियम का डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पे सर नेटवर्क थोड़ा मतलब ब्लर हो रहा था, तो अच्छे से सुनाई नहीं दिया. सर एक बार बता दीजिए ना आइसोट्रोपिक मीडियम के बारे में. हाँ, हम आ रहे हैं ना, हम डिस्कशन में आ रहे हैं. ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ बच्चा. सर ये अब स्लाइड जरा- स्क्रीन हम लोग को शेयर कर दीजिएगा क्या क्लासरूम में? हाँ, सब शेयर कर देंगे बउआ, आज सब शेयर कर देंगे. ठीक है सर, थैंक यू सर.
इदम ना ममा, ये मेरा नहीं है। इदम ना ममा, ये आप लोग हम सब शेयर कर लेना। भाई आप लोग कौन किताब कहाँ से लाएगा, बच्चा सब, है कि नहीं? इसलिए आप लोग के लिए हम जगह जगह से जो मिलता है बढ़िया बढ़िया हम ये कर लेते हैं कि जो है आपको दिक्कत नहीं। तो ये क्या, यू मे आस्क क्वेश्चन। तो बहुत बारे बच्चे हैं, देखें कौन कौन हाथ उठाइए जी, अब सब कोई जिसे पूछना हमको है। सर आइसोट्रॉपिक मीडियम थोड़ा सा। अच्छा पहले आइसोट्रोपिक बता दें, पहले ओपन कर देते हैं सबको। आस्क टू सब, और सबका हाथ सब साउंड पे है ना? और कोई और वो बच्चा सब है क्या? नहीं ना? 1 मिनट जरा रुक जाओ। ठीक, सब लगता है कि अनम्यूट है, ठीक है, गुड। सबसे पूछो, क्या कहते हैं, आस्क ऑल टू अनम्यूट। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। बाजा नहीं बंद कर देंगे फिर से। सबको म्यूट कर दिए ना? सब गाना बजाने लगता है। चलिए पूछिए, आइसोट्रोपिक वाला बताएं। हेलो, हाँ सुमित जी। यस सर, आइसोट्रॉपिक वाला। अब बताते हैं। एनी मीडियम इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक ओनली व्हेन if the dielectric constant is independent of the electric field, direction of the electric field। मतलब कि किसी भी डायरेक्शन पे अगर हम किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेजर करेंगे तो सेम होना। इट डजंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द मीडियम इज। हेलो हेलो सर, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है सर। हेलो हेलो सर। हेलो चाहिए कि नहीं चाहिए? हम सीरियस अबे सीरियस होस्ट कहाँ से बना बे? श्रेयस होस्ट हो गया यार तुम। हाँ श्रेयस ठीक है भाई। टाइम तो लगेगा ना। बन जाते हैं बनाते हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं। कंप्लेन होगा। बना दीजिए। बताओ क्या होता है।